microscopically. That's what you are telling. So as already said by sir, the infection of bone and joints is secondary, mostly secondary to the pulmonary tuberculosis. So that means there has to be a primary site of infection which would probably act as a reservoir for infection spreading onto the joints, that is either the spine, hip or knee. So as said by sir, by hematogenous route, suppose the mycobacterium, the source of the infection, reaches the joint. So in case of TB, the main site of focus is your synovium. Like we have in other cases where other parts of the joint can be involved. In case of TB, it is basically synovitis or synovium that gets primarily infected. So mycobacterium tuberculosis comes and lodges over here, and there is inflammation of the synovium. Now we all know from pathology what is a tubercular infection. It's a kind of granulomatous infection. So it will activate the immune response of the body, and the ultimate result is the formation of a tubercle or a granuloma. And I know that all of you know the part of the granuloma or the tubercle that is being formed. In the center you have the microorganism, and then surrounding it you will have all those chronic cells, inflammatory cells, your lymphocytes, your macrophages, and then it will be surrounded at the periphery by fibrous tissue. So the entire mechanism is to actually contain the organism that has come into it. But then what happens? This is the defense mechanism of the body and the virulence of the organism. It's basically a fight between the two. As long as the patient is immunocompetent and he can fight this infection, this will dominate and the infection will be contained. But once the virulence or the status of the patient goes down, in that case, here you will have all sorts of activities that will be created by bacteria. So there will be formation of pus. So pus, actually we know it is the necrotic debris along with the inflammatory cells that have come over here. So the characteristic of this pus is it is a cold abscess. So the difference between a cold abscess or a normal inflammation that we talk about is that it is not accompanied by all the general signs of inflammation like rheumatoid, dollar, whatever we talk about. So it is the formation of pus. The capsule gets ultimately very much washed with the pus. And at the periphery you have the inflammatory synovium that is known as pannus. So pannus is one of the important terms to be taken care of. So you have the pannus, you have the cold abscess that is formed over there. Ultimately what will happen? The pus or the cold abscess will break through this, will actually rupture the synovium and it will trickle down. So like we had in case of spines, if it trickles down along the fascial plane, you can have that swas femoral truncal in fullness that you get in the form of a cold abscess. So depends कि वो कहाँ trickle करता है. So the basic pathology is that formation of an invasion by the bacteria, formation of cold abscess, which ruptures the capsule and then trickles to present as a cold abscess. So it will cause, there are three stages as told by sir also. Stage 1, stage 2 and stage 3. So stage 1 is synovitis, stage 2 is arthritis, and stage 3 is the ultimate damage that is coming to the, stage 2 is erosion and stage 3 is arthritis. So in these three stages you have the involvement of the joint and the joint synovium and the capsules, and this way depends कि हम लोग पहले patient को diagnose करेंगे. We put him on EPT cover. Middle path regimen is that is followed over here. 4 months period we give for HRZ and then followed by 14 months on isoniazid rifampicin. And in the meantime, depending upon what the patient wants, stability, mobility, and the third thing was, depending on all these features, we will equilibrate the condition of the patient, and then we can go for various options like arthrodesis or depends upon what we plan. Like arthrodesis will give him an immobile hip. So if it is a farmer sort of thing who always has to do some sort of work, he will not advise arthrodesis. Similarly, THR भी उसमें advise नहीं कर सकते because उसके बाद थोड़ा spasm वगैरह में काफी precaution लेना पड़ता है. So all depends upon the occupation and the status of the patient, the treatment that we are planning. नहीं होती है ना, जैसे कि तो ये खैर कह लेती, तो इसको कहना चाहिए था कि भाई ये बैक्टीरिया जमा है. अब इस बैक्टीरिया के पास सबसे पहले मैक्रोफेज आती है ना. वो जो बैक्टीरिया को खा लेती है तो उसके अंदर फैट बढ़ जाता है. ये वो कौन सी सेल बन जाती है? बड़े बड़े फैट वैक्यूल होते हैं उसमें, एपिथेलॉइड सेल कहते हैं. उसके बाद उसको लिम्फोसाइट घेर लेती है. उसके बाद फाइब्रोसिस होती
इसके बाद यहाँ पे एक नेक्रोसिस होती है, इसको कैजिएशन कहते हैं। अब ये कैजिएशन के दो फीचर्स हैं, ये कैल्सिफाई करेगी या लिक्विफाई करेगी। ठीक है, अगर लिक्विफाई करेगी तो एसिड बनेगी। अब ये वाली जो पैथोलॉजी है ना, ये वाली पैथोलॉजी कहां पे हो रही है? घुटने में हो रही है, नी में हो रही। तो नेचर ऑफ लीजन ये है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम कहां से आया है? लंग से आया है। कैसे आया है? ब्लड स्ट्रीम से आया है। ठीक है, अब ये पैथोलॉजी हो कहां रही? ये पैथोलॉजी नी में हो रही। तो ये नी है तुम्हारा, ये टिबिया है, ठीक है, ये फिबुला है। इस टिबिया और फिबुला में यहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा हुआ है, हाँ? इन आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच में मेनिस्कस है, नहीं? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच में मेनिस्कस लगा हुआ है, और यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, एंड ये क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं जो क्रॉस करते हैं, और ये कोलैटरल्स हैं। ठीक है, इसके आगे जो है पेटला बैठा हुआ है, क्वाड्रिसेप्स मैकेनिज्म है, और ये सारी चीजें साइनोवियम से कवर्ड है। नीचे इंट्रापेटुलर पैड ऑफ फैट है, ये साइनोवियम। तो जब कभी भी व्हेन विल बी सस्पेक्ट ट्यूबरकुलोसिस, है ना, प्रेजेंटेशन क्या है? We will suspect tuberculosis of the knee if there is pain, swelling, deformity, loss of function around the knee, and usually the state is monoarticular. Onset is insidious and towards progress. ठीक है, तो whenever this is the presentation, we are suspecting tuberculosis. That means there is an inflammation. What is the differential diagnosis? Any inflammatory pathology of the knee. That is the TB. तो जो नी की जो इंफ्लेमेटरी पैथोलॉजी है वो प्राइमरली 4 में डिवाइडेड है। 4 में डिवाइडेड है ना। एक सेप्टिक तो नहीं है, दूसरी ट्यूबरकुलोसिस, तीसरी इम्यून आर्टिकुलर डिजीज, चौथी गाउट, और पांचवी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो इम्यून आर्टिकुलर डिजीज में तुम्हारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो छोटे छोटे में तुमको ये जरूर कहना पड़ेगा, why not septic, why not ankylosing spondylitis? Why not ankylosing spondylitis? मतलब synovial involvement नहीं है, स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट है, पॉलीआर्टिकुलर है, यंग मेल है, नहीं? Why not rheumatoid arthritis? Why not gout? Why not osteoarthritis? एक बार दिमाग में जब ये प्रेजेंटेशन मिले तो you must throw your net wide. You must be able to
think of all those things that can affect the joint. तो ये पैथोजेनेसिस है, ये प्रेजेंटेशन है, और इसकी तुम लोगों ने सोच ली। अब तुमने सोची कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, इसके फेवर में क्या क्या होता है? इसके फेवर में ये हो सकता है कि पर्सन है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, कमजोर है, ट्यूबरकुलर फैमिली का एक्सपोजर है, खांस रहा था, है ना, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ठीक है। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, इसका मतलब ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। कहीं पे तुमने देखा मैटेड लिम्फ नोड्स मिल गए तुमको, यहां मिल गए, यहां मिल गए, तो मैटेड लिम्फ नोड कम से कम ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी अलग जगह है। यहाँ पे गलती क्या होती है कि नी जॉइंट पे रेड टैग इफेक्ट की तरह घुस गए और लिम्फ नोड देखना भूल गए, ठीक है। इस तरह से दिस पेशेंट starts falling into the category of tuberculosis। और इसमें जो डायग्नोसिस अगर तुमको बनानी है तो one thing must be absolutely clear, site, nature। नेचर तो हो गया टीबी, और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो गई। इसके बाद कॉज, इफेक्ट एंड एसोसिएशन। अगर उसको टीबी है इसका मतलब ये नहीं कि एड्स नहीं हो सकती, अगर उसको टीबी है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि डायबिटीज नहीं हो सकती, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो एक जनरल सर्वे एसोसिएशन क्या है इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, नेवर फॉरगेट। अब इफेक्ट की इशू है। अगर साइनोवियम है, सपोजिंग इट इज साइनोवियम, तो साइनोवियम में क्या हो रहा है? एफ्यूजन हो रहा है और थिकनिंग हो रही है, ठीक है। तो साइनोवियम में स्वेलिंग है, ये कैसी दिखती है? ये ऐसे दिखती है कि अगर ये घुटने को तुम देखो तो ये पेटिला है, हाँ? इस पेटिला के ऊपर गड्ढा है, ये सुप्रा पेटिलर मीडियल और लैटरल गड्ढे, और यहाँ पे लिगामेंटम पेटली होता है, और इसके दोनों तरफ गड्ढे हैं यहाँ पे। अगर ये गड्ढे कॉन्केव नहीं हैं और कॉन्वेक्स हैं, इसका मतलब भरे हुए हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फिलिंग ऑफ सुप्रापैटेलर एंड इंफ्रापैटेलर स्पेसेस। तो यहाँ स्पेस है, इंस्टेड ऑफ कॉन्केव दे बिकम कॉन्वेक्स, दे बिकम कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये देखना है कि या थिकनिंग है या एफ्यूजन। तो ये थिकनिंग और एफ्यूजन कैसे पता लगा? हाँ, दो चीजों से। सबसे पहला ये कि इन दो गड्ढों के ऊपर ये थंब और ये रख लें, और यहाँ पे नीचे रख लें। ऊपर से अगर हम ये प्रेस करेंगे तो नीचे प्रेशर ट्रांसमिट होगा। दिस इज नोन एज क्रॉस फ्लक्चुएशन। दूसरे बार ऊपर और नीचे दोनों दबा लेंगे तो सारा का सारा फ्लूइड पेटला के नीचे चला जाएगा। तो पेटला को अगर टैप करेंगे तो पेटला विल गो डाउन एंड देन कम बैक एंड स्ट्राइक योर फिंगर। दिस इज कॉल्ड एज पैटेलर टैप, ठीक है। तो साइनोवियल एफ्यूजन के फिजिकल साइंस जो हैं वो पैटेलर टैप और क्रॉस फ्लक्चुएशन। और अगर तुम उसको एस्पिरेट करो तो तुमको ट्रांसयूडेट मिलेगा या एक्सीडेट?
एक्सुडेट मिलेगा, ट्रांसुडेट नहीं, इंफ्लेमेशन है। और उस साइनोवियल में उस एस्पिरेट्स में क्या कर सकते हो तुम? तो कल्चर कर सकते हो। किस मीडियम पे करोगे? लोवेस्टीन जंक्शन या पेशेंट्स या गिनी पिग इनॉकुलेशन। गिनी पिग इनॉकुलेशन इज द मोस्ट सेंसिटिव, तो उससे तो तुमको लाइव बैक्टीरिया मिल सकता है। दूसरी बात, तुम एसिड फास्ट ट्रेनिंग कर सकते हो, तो उसमें तुमको वो ट्यूबरकुल दिख जाएगा। इसके बाद अगर तुम्हें कहीं लिम्फ नोड मिल रहा है तो उसकी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कर सकते हो, उससे तुमको बैक्टीरिया दिख जाएगा। और अगर तुम्हें लाइव बैक्टीरिया नहीं दिख रहा पर ट्यूबरकुलोसिस था, इसमें ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया था, ये देखना है तो क्या कर सकते हो? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर, पीसीआर। पीसीआर में अगर डीएनए है बैक्टीरिया का तो दिखने लगेगा। तो तुमने ये देखा कि सबसे पहले तुमने जब ये सोचा कि साइनोवियम इन्वॉल्व है, तो साइनोवियल इन्वॉल्वमेंट बाय ट्यूबरकुलोसिस के कौन कौन से डाटा पॉइंट्स हैं जो उसको इंडिकेट कर सकते हैं? ठीक है, एक तो इस साइनोवियल इन्वॉल्वमेंट। अब इस साइनोवियल इन्वॉल्वमेंट के बाद सेकंड चीज क्या होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्लिनिकली कैसे पता लगे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व? जब आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोड होता है। अगर इरोड होता है तो मूवमेंट विल प्रोड्यूस पेन एंड पेन विल प्रोड्यूस स्पैज़म। और सबसे पावरफुल मसल जैसे उसने बताया बाइसेप्स है, इसलिए बाइसेप्स विल प्रोड्यूस अ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। दैट मींस कंप्लीट एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर एक्सटेंशन करने की कोशिश करोगे तो दर्द होगा। इसका मतलब अब आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद क्या होगा? इरोजन के बाद क्या होता है कि यहां पे इरोजन था और यहां पे भी इरोजन हो गया। इसको कहते हैं किसी भी इरोजन, इरोजन इधर, इरोजन इधर। और फिर फाइनली ये फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट हो जाता है। सो दिस बिकम्स फाइब्रस एंकाइलोसिस। Then the movement becomes zero. Attempt to move is painful. Then this fibrous tissue can convert into bony tissue. Movement becomes zero and pain also becomes zero. So stage of erosion, stage of fibrous ankylosis and stage of bony ankylosis. ये तीन स्टेजेस हैं ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैथोलॉजी और तीनों की अलग अलग पहचान। ठीक है, अब तीसरी बात आई लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट। तो कोलैटरल लिगामेंट्स जो हैं, कोलैटरल लिगामेंट अगर इन्वॉल्व हैं तो दो कोलैटरल लिगामेंट हैं, एक मीडियल है और एक लैटरल। तो नी में मीडियल और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कैसे टेस्ट किया? वैल्गस और वायरस टेस्ट। ठीक है, एक चीज हम भूल गए जब हम यहां पे कह रहे थे आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट, तो हमने तुम्हें क्लिनिकल साइंस तो बता दिए और तीन स्टेजेस बता दी, पर जो रेडियोलॉजिकल साइन है, एक्सरे का साइन है, जो स्पेस है बिटवीन बोनी सर्फेसेस, दिस becomes reduced and then absent. The edges become irregular, space becomes reduced, there may be cystic areas in bone, and finally the space becomes absent. ठीक है,
ट्यूबरकुलोसिस में बोनी एंकाइलोसिस नहीं होती है। ट्यूबरकुलोसिस में बोनी एंकाइलोसिस नहीं होती। उसका रीजन यह है कि ये एसिड फास्ट वेसल है, एसिडिक मीडियम में कैल्सिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो फाइब्रस एंकाइलोसिस तक रह जाता है। इसीलिए तुमको ये आर्थ्रोडिसिस करनी पड़ती है। अगर सेप्टिक आर्थराइटिस होता तो बोनी एंकाइलोसिस हो जाता। ठीक है, तो कोलैटरल तो वाल्गस वायरस से पता कर लिया। और क्रूशिएट्स anterior and posterior draw test. That means knee को 30 degree flex करके you move the tibia backward or forward on the femur. Forward movement is anterior draw, backward is posterior draw. Posterior draw means posterior cruciate, anterior draw means anterior cruciate. Which one is likely to be positive? Posterior draw है, क्योंकि जब लिगामेंट फेल करते हैं then the biceps जो पीछे का है it is pulling the tibia backward. तो एक posterior subluxation होगा नी का, है ना। दूसरा क्या होगा कि नी टिबिया एक्सटर्नली रोटेट कर जाएगी और फ्लेक्स कर जाएगी। तो posterior subluxation, flexion and external rotation of the knee are the three components of triple deformity. But triple dislocation is triple subluxation. समझ में आई? तो तुम्हें जब नी जॉइंट मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस का, तो तुम क्रिस्टल क्लियर साइनोवियम इन्वॉल्वमेंट कितना है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का इन्वॉल्वमेंट कितना है, और इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेटर्नोफीमोरल भूलना नहीं चाहिए, टिबियोफीमोरल एंड पेटर्नोफीमोरल। लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट कितना है, क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में केस में पता लगना चाहिए कि यू नो एंड व्हाई यू आर सेइंग इट। इसके अलावा कभी भी किसी भी हालत में नेवर फॉरगेट द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स, बिकॉज दैट इज द ओनली एविडेंस। अगर तुम्हें यहां लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकवे जो है ये मैटेड मिल रहे, दैट इज द ओनली एविडेंस दैट दिस इज नथिंग बट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तब तुमको कल्चर करने की जरूरत नहीं है, तब तुमको पीसीआर करने की जरूरत नहीं है, मैटेड लिम्फ नोड मिल गए। तो नी जॉइंट एग्जामिन करते करते कभी भी किसी भी हालत में ड्रेनिंग लिम्फ नोड देखना भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना आ गया तुम्हें नी जॉइंट का, जो कि ट्यूबरकुलर हो सकता है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझ में आ गई। Now how do you investigate? To assess the general condition of patient. जोर से बोलो, हेमोग्लोबिन, TLC, TLC, GSR, DBP, BTCT, blood urea, blood sugar, urine and stool. ठीक? अब to confirm pathology of tuberculosis outside the knee and inside the knee. Outside the knee, X-ray chest, put down for AFP, evening line of temperature की charting, ठीक है? PPD, antibodies against tuberculosis, ठीक है? Inside the knee, synovial fluid study, synovial biopsy, synovial histology, PCR, culture, ठीक? अब उसके
उसके बाद इमेजिंग में एक्सरे कर सकते हो, और बड़े लोग, तुम जैसे बड़े लोग एम्स में पढ़ने वाले, और मरीज अगर बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत पैसा उसकी जेब में है, तो सीटी स्कैन और एमआरआई, और तो बहुत बड़ा और भी बड़ा आदमी है, पेट स्कैन करा। फिर वो कोई ये नहीं कहने वाला है कि तुमने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि कई बार तुम पर मुकदमे इस बार नहीं तय हो जाते, अरे पता नहीं कहां का छोटा डॉक्टर है, पेट स्कैन तो कराया नहीं। तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन के लिए तुम कुछ भी करा सकते हो, पर एक बढ़िया क्लिनिकल एग्जामिनेशन से अच्छा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इमेजिंग करा ली तुमने, और तुमने टीबी की डायग्नोसिस करा ली, हाँ, पर इसके बाद तुम्हारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, ईएसआर और सीबीएफ रिपोर्ट, राइट, और लिम्फोसाइटोसिस, क्योंकि ये तुम्हें बताएगा कि भैया आज जो था कल क्या होगा, रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। और क्लिनिकली इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर और वेट लॉस, ये इंडिकेटर्स हैं कि इज योर पेशेंट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। इसके अलावा लोकल साइन सिम्टम मूवमेंट है ना, इन चीजों से तुमको ये पता लगेगा रिस्पॉन्स और नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास मरीज आएगा तो तुमने क्या किया, ट्रैक्शन में लगा दिया, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट कर दिया, एवरी डे पेशेंट का जॉइंट फ्लूइड्स फुल रेंज मूव करते रहे जिससे कि स्टिफनेस ना हो जाए, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज कराते रहे कि वेस्टिंग ना हो जाए, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दिया, न्यूट्रिशन पेशेंट का मेंटेन रखा, और इन पैरामीटर्स पे मॉनिटर किया, जिससे कि तुमने एट द एंड ऑफ 3 weeks and then 3 months, you can 6 weeks, 3 weeks, 6 weeks, and then 3 months, you can tell whether the patient is responding or not responding. Okay? ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस में डॉट्स में 6 महीने के लिए करते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस में हमेशा 18 मंथ्स के लिए करते हैं। अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, रेजिस्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस, तो तुम्हें रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करना माइक्रोबायोलॉजी में आता है ना, तो तुम सेकेंड लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दे सकते हो। पर अगर बहुत देर हो गई, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो गया, लिगामेंट डैमेज हो गया, तो अब तुम जब मरीज को देखोगे, जो तुम्हारे लॉन्ग केस शॉर्ट केस में मरीज आएगा, तो तुम उसको 3 चीजों पे इवैल्यूएट करोगे। पेन कितना है, रेजिडुअल पेन कितना है, डिफॉर्मिटी कितनी है, और फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर पेन है तो फ्यूज करो, अगर डिफॉर्मिटी है तो ट्रैक्शन देके करेक्ट करने की कोशिश करो, मैकेनिकल मीन से करेक्ट करने की कोशिश करो, या फ्यूजन में वेजेस ऐसे काटो कि डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाए, है ना। और इसमें हमेशा क्या ध्यान रखना, लॉस ऑफ फंक्शन। कोई भी अमीर आदमी इस बात पर तैयार नहीं होगा कि उसका नी मूव नहीं करेगा, इसलिए वो कहेगा टीकेआर करा लीजिए सर। जब तुम कहोगे मत कराइए, इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो जाएगा, मेटल डाल रहे, तो कहेगा करना नहीं आता है इसलिए नहीं है।
सही। तो उस समय तुम्हें अपनी बात से नहीं टिकना है भैया। टीकेआर आपको कराना हो तो किसी से करा लीजिए, मैं नहीं करने वाला, ठीक है? क्योंकि मरीज की कंसेंट तो इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारी भी तो कंसेंट इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी साइंस कह रही है नहीं करना तो नहीं करना, ऑलराइट। और यूजुअली बात ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, कि अगर पहली बार एटीटी लेना शुरू कर रहा है तो रेजिस्टेंस के चांसेस खाली 2%। पर अगर लेके उसने कंप्लायंस लॉस किया है और तुम्हें दोबारा एटीटी स्टार्ट करने की बारी आ रही है, तो रेजिस्टेंस के चांस 40%। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में है कि किसी भी हालत में कॉम्प्लायंस का लॉस नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लायंस का लॉस होता कैसे है? हेपेटिक टॉक्सिसिटी से होता है। जो हेपेटिक टॉक्सिसिटी है किस ड्रग की? पायरेजिनामाइड की। पायरेजिनामाइड की जो हेपेटिक टॉक्सिसिटी है, तो तुम्हें एसजीओटी एसजीपीटी पे ध्यान रखना पड़ता है। और उस वजह से नॉसिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट शुरू हुई, पेशेंट फील्स एबनॉर्मल, तो कॉम्प्लायंस लॉस हो जाता है। तो उनको ये कहना है कुछ भी हो जाए बंद तभी करनी है जब खुद से पूछ लो, ठीक है? और फिर देयर इज अ मेथड ऑफ कंटिन्यूइंग एटीटी डिस्पाइट लिवर डैमेज। एक और टॉक्सिसिटी होती है आइसोनाइलेट से, क्या होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है। पर एक और बात होती है, वो ये होती है कि एंजाइम जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, इसलिए भूख बहुत बढ़ जाती है। तो चल रहा नहीं है और भूख बढ़ गई तो क्या होगा? वेट गेन होगा। और वेट गेन बेचारा घुटना वैसे ही बीमार है, तो वेट गेन उसको जनरली नुकसान करे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें जो है इस लेक्चर में और ऐड हो सकती है, क्योंकि जब लॉन्ग केस मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस का, तो सारे के सारे सवाल आपके सर पे आ सकते हैं। किसी को और कोई सवाल याद आ रहा हो जो पूछा जा सकता हो, तुम्हें बताओ भाई, तुम बताओ, कोई और बताए। अगर एमएस का इम्तिहान मैं ले रहा हूं और इतना चीज तुम लोग क्लियरली बता जाओ, तो मैं मेरे ख्याल से पास कर दूंगा। अगर दूसरा वाला फेल ना कर पाए